Hello everyone, welcome to today's webinar. My name is Aishna. I am the Assistant Editor at CA Club India. Today we have with us CA Ujjwal Jindal, founder at UJ and Company and co-founder at UJ Legal LLP, who will be sharing some insights on Section 115 BAC, which is the new income tax regime. Ujjwal is a BCom graduate from the University of Delhi, an associate company secretary, and a practicing chartered accountant. He has also been certified from the CFA Institute in the Investment Foundations program. Ujjwal, we are absolutely delighted to have you with us today. Just a quick disclaimer for the audience. This is a speaker session, which will be followed by a Q&A session. So please put down any questions that you may have regarding the topic in the chat box, and we will be taking it up in the Q&A session. Handing over to you, Ujjwal, now. Thank you so much, Aishna, for the wonderful introduction. It has always been a pleasure to be part of the community of CA Club India and to address people the vast base that the CA Club India has. So today we are focusing on Section 115 BAC that was introduced by the Budget 2020 and was subsequently notified by the Finance Act 2020. I thank first of all everyone for joining us for this webinar, and I'm sure after attending this webinar, you all would be very much. Everyone, video is visible with everyone, and also the audio. Yes, Ujjwal, your video is very much visible. Okay. I'll just request everyone to please switch off their mic and their video. Thank you. So, like I was telling, after attending this session, you would be very much able to decide that whether you should opt in for this new tax regime that has been offered, or you should stay in the old one. Many CAs who are attending or professionals that are attending this webinar with us, they also would be very clear about the thin lines of the provision that have been specified or notified, and also they would be able to advise their clients in a better way. We have compiled everything from the Budget 2020, the Finance Act 2020, and have also pulled up the notifications and circulars that have been notified by the Income Tax Department from time to time. The first came in April, and the second one was shared on 1st of October. So let us begin the topic now. India is the second most populous country, seventh largest country by area, and the most colossal democracy in the world. To run such a cosmic nation, the government requires a lot of resources. Such resources are collected in form of taxes, the primary aim of which is to fund the governance of the nation. The money so raised is expended to carry out various functions, that is building the economic infrastructure, that is the road, public transportation, sanitation, legal system, public safety, alike, etc. The taxes basically in India are of two forms. One is the direct tax and second is the indirect tax. I am highlighting the provisions from the very beginning because I know many people from the common parlance are also a part of this webinar, because somehow or the other Section 115 BSE is connected to the life of individuals and HUFs. So even common man can understand the provisions in a better way. So I am starting this topic with the basics of tax, like what the direct tax will be and how would the provisions turn up. Okay. The taxes in India are of two types that I told, direct tax and indirect tax. The implementation of both these taxes differ in a very big way. Under the direct tax, the onus of payment of tax lies on the person earning the income on which such tax is payable, such as income tax, corporate tax, MAT, that is minimum alternate tax, AMT, alternate minimum tax, etc. However, under the indirect tax, the onus of tax payment lies on the other person who first collects the tax and then deposits it with the government on the behalf of the taxpayer. That is, we all know GST and VAT. That is value added tax, that was before, and excise duty, custom duty, and there were so many examples. Thus, the onus of payment, that is direct under the former and indirect under the latter, is the basic principle that distinguishes taxes into direct tax and indirect tax. Now, an individual and HUF is liable to pay tax directly to the government on the income that they earn during the financial year. This levy or financial charge so imposed is the income tax, we are all aware of. So income tax is the tax on the total income of the person.
Now, before this budget 2020, such income tax was payable by an individual or HUF on their respective total incomes after claiming various exemptions and deductions. There was a single method that was applicable to both assesses. We shall address it by the name of old tax regime, and the new one that came in, we'll call it as new tax regime. So the budget 2020, it introduced what was known as the new tax regime, where taxes on income of individuals and HUF were to be computed differently. This was something which was done for the very first time by the Ministry of Finance. It was never done before. The new tax regime was made optional by the government, which led to extensive confusion in the minds of general public. कि कौन सा टैक्स रिजीम हम चूज करें, whether we should stay in the old one or we should switch in the new one. There was a lot of confusion amidst many people. Many people called me, many of my clients approached me, even the professionals called that how everything is to be computed and what all everything it would be. Even it took government some time to notify everything in a fair manner. So this was the main question, that what should we select. So what are the conditions additionally that are to be complied with in order to opt in for the new tax regime, and what would be the future implications of their decisions? Like opt तो मैंने आज कर लिया, but whether I will be getting any benefit, और उस टाइम पे जिस टाइम पे I will be calculating my taxes and everything, whether it would be beneficial under the new scheme or the old scheme, whether I have to decide it now or I should have to decide it future at in the assessment year when I'll be finalizing my return. So this were the basic questions that were in the mind of everyone. Today we shall analyze in detail the newly introduced provisions relating to the new tax regime, its scope, applicability, conditions, benefits, which would help you to decide that whether you should opt in this new tax regime or continue to stay in the old tax regime. So this was a crisp introduction that what this tax regime is all about, and how the old tax regime would be substituted by the new tax regime optionally, like on the option of the taxpayer. So this was the introduction, and now we are moving towards the regime, that is section 115 BSE, introduced by the Finance Act 2020. This particular section provides that the income tax which is payable in respect of the total income, चाहे वो individual की हो चाहे वो HUF की हो, we are only concerned about in 115 BSE about the incomes of either individual or HUF, they being resident or non-resident. So this was also a catch, that whether these provisions are applicable to non-residents as well. So yes, these are available to non-residents too. So these are both for resident individuals or HUF, or non-resident individuals or HUF. So for any previous year, if they want to compute their tax liability beginning after the first day of April 2020, this new regime shall be applicable for the financial year 2020-2021, and therefore you will be calculating your taxes on the incomes that are pertaining to period 2020-2021. तो जब आप लोग मई 21 या जून 21 में, जो जुलाई 21 में जब आप अपनी रिटर्न्स को फाइनलाइज करेंगे for the incomes that you have earned in 2020 and 2021, so then you will be referring to this new scheme, new regime. इससे पहले अभी तो 1920 का सब कुछ फाइनलाइज हो रहा है, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 गवर्नमेंट ने पुश कर दिया ड्यू टू दिस कोविड दैट इज सो मच प्रेवलेंट. बट ये रिजीम जो अपना है, ये है उन इनकम्स के लिए, इट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज इनकम दैट यू विल अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज 2020-2021. इसके आगे से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इस रिजीम को चूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते. 1920 के लिए हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है. और ये ऑप्शनल स्कीम है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ. बाद में हम लोग इसे एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे दैट हाउ यू कैन बी बेनिफिशियल, और आप लोग ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंसेस के हिसाब से. ओके, सो इसके अंदर बेसिकली द स्कीम गेव अ न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, the new tax structure, the basis for which the computation rates were separate than those that were practiced before. तो ये टैक्स रेट्स क्या थे? अभी के जो टैक्स स्लैब्स हैं वो आपको क्लियर हैं. हम लोग 2.5 लाख तक कुछ पे नहीं करते हैं.
2.5 लाख से 5 लाख तक हम 5% पे करते हैं, लेकिन उसमें हमें रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है अगर हमारी इनकम 5 लाख तक की है। उसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक हम लोग 20% पे करते हैं, एंड फॉर एनी इनकम दैट एक्सीड्स 10 लाख वी आर पेइंग 30%, वी आर इन द दैट स्लैब। सो ये वाले टैक्स स्ट्रक्चर में दे ब्रॉट 7 टैक्स स्लैब्स। अभी तक वी वर फॉलोइंग 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, एंड 10 लाख से अबव, यानी 4। अब आ गए हैं टोटल 7। थोड़ा सा गवर्नमेंट कह के लाई है दैट वी हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसीजर। पहले ही टैक्स स्लैब 4 + 3 = 7 हो गए हैं हमारे पास। तो अप टू 2.5 लाख हमारा यहाँ पे भी इस रिजीम में भी नील टैक्स रहेगा। 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख तक यू हैव टू पे 5%। ये भी एकदम ओल्ड की तरह ही है, नथिंग इज चेंजिंग। From 5,01 rupee to 7,50,000, you have a new slab now, new rate, that is 10%. Earlier, you were taxed at 20% if you were having income up to 7.5 lakh. Up to 10 lakh भी 20% ही था, बट यहाँ पे ये 10% करके इन्होंने ड्रॉप किया है इस रेट को। 7,50,001 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे आप 15% दे रहे हैं। 10,01 की इनकम से लेके 12,50,000 तक की इनकम पे आप 20% दे रहे हैं। 12,50,001 की इनकम से लेके 15 लाख तक यू आर पेइंग 25%, एंड कितनी भी इनकम हो फिर 15 लाख से ऊपर, तब आप आते हैं 30% के स्लैब में। यानी पहले आप अगर 10 लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहे थे, सो यू वर कमिंग अंडर द स्लैब ऑफ 30%, बट नाउ इफ यू आर अर्निंग मोर देन 15 लाख, तब आप आ रहे हैं 30% के ब्रैकेट में। उससे पहले 5% रेट्स में डिफरेंस है। So thus the act provides for an alternate system of income tax computation under which there would be a uniform slab rate for all age groups alike, that is for individual aged 18 years and onwards. ये सबके लिए है। जैसे अब हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों का एज जो है दैट इज 60 years and above, जो सीनियर सिटीजन क्लासिफाइड है, सो उनका 3.5 लाख तक आपकी जीरो इनकम, 3 लाख तक जीरो इनकम है उनकी, ठीक है ना, 2.5 लाख की बजाय। तो अब लेकिन सबके लिए, इवन फॉर सुपर सीनियर सिटीजन जिनका टैक्स स्लैब 5 लाख तक जीरो है अभी फॉर द टाइम बिंग, तो उनके लिए भी अब कोई सेपरेट अलग से रेट्स नहीं आ रहे हैं। वन एंड ऑल कॉमन टू एवरीवन, ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक ही जैसे रेट्स सब लोग फॉलो करेंगे। The new tax regime so notified would be available at the option of assessee. ये बहुत बड़ी एक जो इसमें प्लस पॉइंट है स्कीम का, दैट इट इज ऑप्शनल, एंड इसके ऑप्शनल होने के दोनों ही बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेनिफिट ये है कि नाउ यू हैव 2 स्कीम्स टू चूज फॉर, कि आप या तो इसमें जाइए या उसमें जाइए। पहले तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था, दैट हाँ ये डिफाइंड है एंड वी हैव टू कैलकुलेट योर टैक्सेस डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ योर इनकम। So now you have at least an option. So this is also a way blessing in disguise कि अब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अब आप पहले उससे कंप्यूट करेंगे, फिर न्यू में कंप्यूट करेंगे, फिर जो आपको बेटर पड़ेगा वो चूज करेंगे। सो प्रोफेशनल्स के लिए ही थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि नाउ अगर कोई बंदा जो पहले अपनी असेसी जो है वो अपनी इनकम्स कंप्यूट कर रहा था, सो ही वाज वेरी मच अवेयर अबाउट द सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग, कौन सी एग्जाम्पशंस लेनी थी कौन सी नहीं लेनी थी। So he was even not approaching the professional कि भाई मैं इनके पास जाऊं ही क्यों, when I am aware about the details, and मैं अपने आप अपने रिटर्न भर के जो है अपना टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट को पे कर देता हूं। But now we have 2 options, that this one or that one. So in that the professional advice becomes kind of mandatory। है तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर न्यू वाला, लेकिन अभी इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कौन सा एग्जाम्पशन है, कौन सी डिडक्शंस हैं, कुछ वापस ले लिया कुछ दे दिया, देयर आर सो मच क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व। तो आज हम लोग वही सारे डिकोड कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग इट वन बाय वन नाउ वेरी सून। सो द न्यू स्कीम, जैसे मैंने बोला, इट हैज बीन मेड ऑप्शनल, दैट assessee may opt choose to may or may not opt for the new scheme and can at his option continue under the old tax regime as well, which he was following till date। ये सब सुन के मतलब when this scheme was on the TV, when the finance minister was announcing this benefit, so it was very attractive, luring to everyone who was listening to the scheme। but उसी टाइम पे हम लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई थी कि दे रहे हैं तो कुछ लेंगे जरूर, क्योंकि everything in this world comes with a price। so एक जैसे लैटिन का बहुत ही फेमस मैक्सिम है, that quid pro quo, that means something for something, that is something in return। सो गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये
reduced tax rates तो ऑफर कर दिया, बट डेफिनेटली दे आर ऑल्सो टेकिंग बैक few of the benefits that they have given us under the old tax regime. तो उनके बारे में अब धीरे धीरे करके we are starting our discussion. So an individual or HUF was earlier liable to pay tax at 30% on his total income in excess of rupees 10 lakh. And under the new tax regime, the monetary limit is substituted by rupees 15 lakh. 5 लाख का तो सीधा सीधा बेनिफिट दिखाई दे रहा था सबको जब ये स्कीम अनाउंस हो रही थी. बट जैसा कि मैंने बोला कि क्विड प्रो क्यों है, तो कुछ भी फ्री नहीं आएगा. तो हम लोग समझते हैं अब कि ये कैसे, क्या है, क्या नहीं है, और किसके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर रहेगी. So the act provides that the newly inserted optional tax scheme shall be invalid for an individual or HUF if his certain conditions are not fulfilled. ये लीजिए, लगा दिया उन्होंने कंडीशन कि अगर आपने ये कंडीशंस पूरी नहीं करी हैं तो आपको न्यू स्कीम का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा. तो इस डिस्कशन के लिए लाइक आई हैव डाइसेक्टेड द टॉपिक इन 2 parts. First part will talk about income of the individuals or HUF जिनकी income profit from business and profession नहीं है, like any income except for income from profit and income from business or profession. Second part में हम बात करेंगे उन individuals और HUF की whose income include income from business and profession. तो दोनों के लिए टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम है, उसका बेनिफिट है, बट क्या उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ दैट इज कमिंग, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. So we are first moving towards the part 1, that is individuals and HUF who have income other than the income from business or profession. सबसे पहले we are talking about the sacrifices जो हमें बलिदान देने होंगे इस स्कीम को लेने के लिए. So the sacrifices or the foregoing the deductions or the exemptions that we have to live in. So to avail the benefits of the reduced tax slab under the new tax regime, individual and HUF will have to forego the below mentioned deduction exemptions. इन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ मूव करते हैं. सबसे पहला हमारी लिस्ट में आता है लीव ट्रैवल कंसेशन या LTC, या इसे हम कहते हैं लीव ट्रैवल असिस्टेंस फी. ये हमें पहले अलाउ होता था सेक्शन 10(5) के अंडर. ठीक है, इसमें अगर आप LTC से जुड़ा हुआ खर्चा जो आपका हुआ करता था वो एग्जेम्प्ट होता था. बट न्यू स्कीम के अंदर अगर आपका LTC से जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस है उसकी एग्जेम्पशन अब आपको नहीं मिलेगी, यानी वो खर्चा भी आपका हो जाएगा टैक्सेबल. दूसरा हमें डिडक्शन एग्जेम्पशन मिला करता था एम्प्लॉय सेक्टर में, वो बहुत ही मेजर एग्जेम्पशन हुआ करता था HRA का, जिसे हम कहते थे हाउस रेंट अलाउंस. जो आप रेंट पे करते थे उसका हम लोगों को एग्जेम्पशन मिलती थी उतने अमाउंट तक की. इट वाज कैलकुलेटेड एज पर द रूल 10(13)A. तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती थी दैट वाज कंप्यूटेड एंड उतने अमाउंट का आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलता था अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम पे. बट वो आपसे अब वापस ले लिया गया. और भी बहुत सारे अदर अलाउंसेस थे टू मीट योर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज एटसेट्रा, जो कि सेक्शन 10(14) के अंदर स्पेसिफाइड थे, वो भी आपसे गवर्नमेंट ने वापस स्नैच कर लिए. डेली और एनी अलाउंसेस टू MPs और MLAs, ये भी गवर्नमेंट ने उनसे वापस ले लिए हैं कि अगर वो न्यू रिजीम के अंदर आते हैं तो वो इन अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे. उनकी एग्जेम्पशन वो लोग लेते थे 10(17). अलाउंसेस फॉर इनकम ऑफ माइनर, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर विद पेरेंट्स, इसकी भी एक स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन मिला करती थी 10(32) के अंदर. हालांकि बहुत छोटी एग्जेम्पशन होती थी, बट एक एग्जेम्पशन थी जो मिली हुई थी, आई गेस 500 रुपए पर चाइल्ड पर एनम की पर मंथ की डिडक्शन थी, लेकिन मिल रही थी. तो अब हमें वो भी फोरगो करनी पड़ेगी. एक सैलरी वालों का फेवरेट डिडक्शन था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि पिछले साल था 40,000 एंड इस 1920 के लिए उसे बढ़ा के कर दिया गया था 50,000. एंड सब लोग बहुत खुश थे इस डिडक्शन को लेके, बिकॉज ये बहुत सारे अलाउंसेस के अगेंस्ट ये डिडक्शन आया था एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. जैसे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट के टाइम पे 30% माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैसे ही एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए आया था एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो ये 50,000 रुपीज का जो डिडक्शन है ये भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर. ओ माय गॉड, ये वाला तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है सबके लिए कि ये तक भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया है. बट इसके भी रीजंस हैं, बिकॉज वहां पे आपको 5% से लेकर 10% का रिबेट दिया है गवर्नमेंट ने अपने रेट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली दे टेक समथिंग फॉर इट. तो ये वाला उन्होंने विड्रॉ कर लिया.
सेकेंडली, ये भी बहुत बड़ा मेरे हिसाब से उन्होंने डिडक्शन का बेनिफिट छीन लिया है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन 23(2), जो कि हमें मिला करती थी सेक्शन 24(b) के तहत। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ करता था, जिसमें हमें 2 लाख रुपीज तक के इंटरेस्ट पेड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मिलती थी विद इन द सेम ईयर, और ये इनकम का सेट ऑफ था दूसरी इनकम से जो हम अर्न करते थे। बेसिकली ये इंटरेस्ट के खर्चे को, अगर आप सैलरीड हैं तो 2 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी इनकम कम हो जाती थी और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कॉम्प्यूटेशन होता था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपकी अकोमोडेशन रेंटेड है तो उसका बेनिफिट सरकार ने आपको दिया है, बट उसको उसको भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो लेके आए हैं। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में हम भी बात करते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट एंड लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी को कर लिया है विड्रॉ, जो कि मिलता था 24(b) में। अगली डिडक्शन जो विड्रॉ हुई है वो थी फैमिली पेंशन की डिडक्शन। ये भी बहुत अच्छी डिडक्शन हुआ करती थी, 57(2)(a) में मिलती थी ये डिडक्शन, एंड ये सब्सिक्वेंटली अब सरकार ने कर लिया है विड्रॉ। अब हम आते हैं वो डिडक्शंस के ऊपर एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर अबाउट, दैट इज चैप्टर 6 से डिडक्शंस। चैप्टर 6 से डिडक्शंस 80C, 80D, 80F, 80G सारी जितनी भी थी हम लोग जो मतलब एवरीवन वुड बी ब्रॉडली अवेयर विद दोस डिडक्शंस। सो उनमें से कौन कौन सी डिडक्शंस गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली हैं, तो मैं कहूंगा सारी ही कर ली हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। everything has been withdrawn for substituting your old tax regime for the new tax regime। तो ये पहली तो आपकी 80C विड्रॉ, 1.5 लाख खत्म। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ELSS, 5 ईयर FD, सब विड्रॉ। 1.5 लाख की आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड डिडक्शन आपकी आती थी 80CCC के अंदर, जो की थी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी विड्रॉ कर लिया है, इसकी भी लिमिट 1.5 लाख की हुआ करती थी। 80C, 80CCC और इन सब की मिला के आपको 1.5 लाख की मिलती थी। तो क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ कर लिया है, सो यू आर नॉट गेटिंग दिस बेनिफिट। द थर्ड वन इज द NPS, 80CCD, 80CCD। इसके अंदर जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी, इसकी आपको डिडक्शन मिलती थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी अलाउंस गवर्नमेंट ने दी है 80CCD 2 के अंदर। वो मैं अभी आपसे सारी डिडक्शंस को बात करने के बाद डिस्कस करता हूँ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80D, सबकी मनचाही डिडक्शन, जो कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर इन सम केसेस डिडक्शन देती थी। तो न्यू टैक्स रिजीम में वो वाली डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये मिलती थी 80DD। मुझे बड़ा दुख हुआ ये वाली डिडक्शन भी ले ली गई है, बिकॉज दिस वाज समथिंग कि अ पर्सन वाज डूइंग फॉर अ डिपेंडेंट डिसेबल। तो ये डिडक्शन गवर्नमेंट को विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट का जो भी व्यू फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सारी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस विड्रॉ कर ली हैं, तो ये वाले भी विड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि 80DDB में मिला करती थी, इसे भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट एंड लोन मिला करता था हायर एजुकेशन के लिए 80E के अंदर, इसे भी, इस डिडक्शन को भी विड्रॉ कर लिया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये एडिशनल डिडक्शन मिला करती थी 80EE में। हाउएवर इसके अंदर कुछ कंडीशंस हुआ करती थी कि आपके हाउस प्रॉपर्टी इतने की होनी चाहिए, लोन अमाउंट इतना का होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन लोन एडिशनल मिलता था। जो अभी 24B वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की हम बात कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा मिलता था ये वाला डिडक्शन आपको, तो ये भी आपसे वापस ले लिया गया। बेसिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात थी जो मिला करती थी, चलिए ये भी इन्होंने वापस ले लिया गया। सर्टेन हाउस प्रॉपर्टीज के लिए EEA में भी एक लोन मिला करता था, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट डिडक्शन मिलती थी, दैट हैज आल्सो बीन टेकन बैक। एक नया प्रोविजन आया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये भी लाइक न्यूली इंट्रोड्यूस था, लाइक पिछले बजट में आया था आई सपोज। तो ये EEB आया था, इसके अंदर आपको डिडक्शन मिलनी थी, बट न्यू टैक्स रिजिम में EEB भी नहीं मिलेगी। डोनेशंस की भी डिडक्शन आपसे वापस ले ली गई है 80G वाली। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था मतलब कि अब आप चूज करेंगे क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया एक बार के लिए कि छोड़ा ही क्या है। 5% से 10% का बेनिफिट तो दे दिया है रेट के अंदर, बट व्हाट दे हैव लेफ्ट इन द वे ऑफ एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस, कुछ भी नहीं छोड़ा, एवरीथिंग हैज बीन टेकन अ बैक। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। 80G में एक डिडक्शन मिला करती थी रेंट पेमेंट्स के लिए, जब आप कैश रेंट पे करते थे या फिर आपका अपना हाउस नहीं था बट यू आर पेइंग रेंट टू समवन,
इवन इन कैश और इवन बाय चेक, तो आपको डिडक्शन मिला करती थी 5,000 रुपीज पर मंथ की डिडक्शन हुआ करती थी मैक्सिमम, और भी इसकी दो कंडीशंस और थी, तो ये भी आपसे वापस ले ली गई है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी वापस ले ली गई है। 80 GGA की डिडक्शन थी ये भी न्यू टैक्स रिजीम में दे आर नॉट अलाउइंग दिस डिडक्शन। द लास्ट वन आई एम डिस्कसिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो वापस ले ली गई हैं, बट लिस्ट बहुत लंबी रहेगी फिर, सो वी आर डिस्कसिंग द मेजर वंस। सो लास्ट रहेगी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये गवर्नमेंट ने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, मुझे ऐसा लगता है, बट चलिए ये वाली डिडक्शन ले गई है। सेक्शन 80 GGC में मिलती थी ये डिडक्शन, सो वी आर नॉट गेटिंग दी ऑल दीज डिडक्शंस अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। आप लोग सोच रहे होंगे कि बचा क्या है, हम लोग तो 80C 80D 80DD DDB ये सब तो, ये जो बाकी की आपने बताई है, तो हम 80G और 80C लेते थे एंड वो नहीं मिल रही है, तो मिल क्या रहा है, ऊपर से एग्जाम्पशन HRA वगैरह भी रह गए। देखिए यू हैव टू कंप्यूट योर इनकम्स बेसिकली, कि आपको ईयर एंड पे अपने जाके कंप्यूट करना पड़ेगा दैट कौन सा रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, एंड इसके लिए आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो आपका दोनों रिजीम्स के अंदर जो है इनकम की कंप्यूटेशन बना दे, and you would be in a better position to decide that whether you have less tax exposure in the new tax regime or you should continue with the old tax regime. एम्प्लॉयज के लिए, जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली, उनके लिए टीडीएस का क्या सिस्टम रहेगा, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन सम टाइम नाउ। तो कि व्हेन दे हैव टू फाइल, व्हेन दे हैव टू गिव द इंटीमेशन, न्यू में कटेगा ओल्ड में कटेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, विल क्लियर एज वी प्रोसीड फर्दर विद आवर डिस्कशन। सो अब बात करते हैं, मैंने अभी ऊपर बोला था एनपीएस के लिए 80CCD में कि एक उन्होंने छोटा सा बेनिफिट आपके लिए छोड़ा है गवर्नमेंट। सो दैट वाज बेसिकली पर्टेनिंग टू 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCD2। सो उसमें होता था वेयर द एम्प्लॉयर मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द असेसी, he shall be allowed a deduction in the computation of his total income of the whole of the amount contributed by the employer as does not exceed 10% of his salary in the previous year. तो ये कंटिन्यू रहेगा। 80CCD2 का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा रियायत दिया है इन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने कि जी यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 80CCD2। 80CCD1 वो वाला बेनिफिट आपसे ले लिया गया जो एडिशनल डिडक्शन मिला करती थी, वो ले। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि कौन कौन से अलाउंसेस गवर्नमेंट ने अलाउ करे हैं, मतलब जो आप क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम है आपका। सो दैट केम अप बाय नोटिफिकेशन दैट वाज 38/2020। सो ये नोटिफाई हुआ था, and there were certain changes that were made in Rule 2BB of the Income Tax Rule 1962. So by virtue of that amendment or by that notification, there are certain like allowances for which you can still, the employee can still claim the exemption if he chooses to be in the new tax regime. So I'll just quickly highlight those. So an employee being an assessee who has exercised the option under this new tax regime shall be entitled to the exemption only in respect of the allowances, that is to meet his cost of travel on tour or on transfer. So ये वाला आप ले सकते हैं। Any allowance granted to him to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of its duties of an office or employment of profit, ये वाला आपको मिल जाएगा नए के अंदर। या फिर कोई भी allowance whether granted on tour or for period of journey in connection with transfer to meet ordinary daily charges charged incurred by an employee on account of absence from his normal course of duty। तो ये तीनों छोटे छोटे से अलाउंसेस हैं, मेरे हिसाब से सारे के सारे ट्रांसफर और आपके ये कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अलाउंसेस हैं। सो दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द एग्जाम, स्टिल कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड द एग्जाम्पशन एज वाज प्रोवाइडेड अर्लियर इन द ओल्ड टैक्स रिजीम। सो इसमें सब में एक ही कंडीशन थी कि खर्चा आप लोग करते हैं, बेसिकली दैट इज द फ्री कन्वेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। तो उस केसेस में आपको ये ऑब्वियसली ये अलाउंसेस मिल रहे थे। एंड एक और इन्होंने छोटी सी रियायत दी है, दैट इज फॉर ब्लाइंड पीपल और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। सो वो वाली जो अलाउंस था 3200 रुपीज पर मंथ का वो अलाउंस था, दैट वाज आल्सो अ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि ये स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए था, तो फॉर कम्यूटेशन बेसिस बेसिकली। सो दे हैव कंटिन्यूड दिस पर्टिकुलर अलाउंस इन द न्यू टैक्स रिजीम एज वेल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है कि हमें ये तो हो गया डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस जो कि हमें फोरगो करनी पड़ेंगी इफ वी चूज टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम।
सो व्हाट आर दी अदर कंडीशंस, और क्या सेक्रीफाइसेस या और क्या चीज फोरगो करनी पड़ेगी हम लोगों को. सो उनमें से एक फोरगोइंग है हमारी अब, दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू, दैट इज द फोरगोइंग दिस सेट ऑफ. हम लोगों को बहुत सारी अपने लॉसेस वगैरह का सेट ऑफ मिल जाता है व्हाइल कंप्यूटिंग आर एनुअल टोटल इनकम. सो अब कौन कौन से वो अलाउंसेस सेट ऑफ आपको नहीं मिलेंगे. So new tax regime shall be available without set off of any loss carried forward from the earlier year if such loss is attributable to any of the above mentioned deductions. So जो भी मैंने अभी आपको deductions बताई हैं, if attributing to them आपकी जो total income आ रही थी that was resulting in a loss, उसका आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलता था डिपेंडिंग अपॉन किस हेड में आपका वो लॉस अक्यूमुलेट था. तो वो आपसे बेसिकली पूरा कैरी फॉरवर्ड का ऑफ लॉसेस का राइट ही गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है. नए न्यू रिजीम के अंदर इफ यू ऑप्ट इन, तो आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का दैट वर पर्टेनिंग टू दीज डिडक्शंस दैट वी जस्ट हाईलाइटेड. सो बेसिकली लॉस कैरी फॉरवर्ड का इन्होंने पूरा राइट हम लोगों से विड्रॉ कर लिया है in return in view of the reduced tax rates that are offered by the new tax regime. Secondly was under the head house property with any other head of income. मतलब अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन्हें सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो आपसे ये बेनिफिट विड्रॉ कर ही लिया है, वो तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते. लेकिन अब जब हम मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी है रेंटेड, और रेंटेड के केस में वी आर paying the interest to the banks for the loan taken for the property, for purchasing the particular house or residential house property or any house property. So even that interest, that is not allowed to be set off against other heads of income. उसको आप सैलरी इनकम के साथ अपनी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. आपकी जो रेंटल से इनकम आ रही है उस रेंटल की इनकम तक ही उसका सेट ऑफ आपको अवेलेबल रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अर्निंग अ रेंट ऑफ से सपोज 1000 रुपीज, अब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए छोटी अमाउंट ले रहा हूँ, 1000 रुपीज, तो इसके ऊपर आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस सब कुछ कर करा के 30% का स्टैंडर्ड रेट लेके आपका मान लीजिए नेट इनकम जो बनती थी वो बनती थी से सपोज 500 रुपीज. अब 500 रुपीज और आपने जो इंटरेस्ट पे करना था, जो अपने बैंकर को इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी पे करना था, वो से सपोज आपने पे किया 600 का. ठीक है, तो पिछले में तो हमें क्या मिलता था, पूरे 600 का अलाउंस मिल जाता था. 100 जो हमारा ये नहीं इससे 500 से हुआ, ये हमारे सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो जाता. लेकिन अगर आप न्यू रिजीम के अंदर हैं तो आपका ये 500 तक का ही आपको इसका क्लेम मिलेगा. बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. सो ये भी एक क्वेश्चन था कि डिडक्शन तो नहीं मिल रही है, सेट ऑफ तो नहीं मिल रहा है, बट वेदर दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड. तो यस, ये सेट ऑफ नहीं होगा लेकिन कैरी फॉरवर्ड आपका हो जाएगा 8 असेसमेंट ईयर्स तक. वो आपको अगर आपकी नेक्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी उस तक ही वो अगेन वो डिडक्शन, वो सेट ऑफ का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड अपनी इनकम को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट कर सकते हैं. सो ये दो सेट ऑफ्स आपको फोरगो करने पड़ेंगे इफ यू चूज अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. ठीक है, अब इस स्कीम के लिए हम ऑप्ट इन कैसे करेंगे. So the government gave a method. जब act आया था, when the act was notified, the finance act, so it stated that there would be a relevant set of rules that the person has to follow to opt in for this new tax regime. So what were the rules that were notified, or what all came in कि हम लोग कैसे इस स्कीम में जा सकते हैं, स्कीम से बाहर आ सकते हैं. So basically जो भी लोग, everyone who was to take benefit of this scheme was to apply for this scheme. और इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म आया था जिसे हम जो ये नोटिफाई हुआ था अभी नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 से, और रूल 21 AG ऑफ द इनकम टैक्स रूल के तहत ये फॉर्म नोटिफाई हुआ था. इस फॉर्म का नंबर था फॉर्म 10(1)E. मैं अभी आइसना से कह के भी ये फॉर्म आप लोग सबको दिखाता हूँ फॉर योर रेडी रेफरेंस कि इस फॉर्म के अंदर व्हाट ऑल डिटेल्स वी हैव टू पंच इन, what everything would be shown under this form, and what everything we have to follow in order to take the benefit of this provision. So I would request Aishna कि आप please ये form, if you are listening, so kindly please मुझे ये form show कीजिए on screen. Okay, just a second. Yes. Is the form visible? Yes, it's perfectly visible. Visible to everyone, I believe. So this form came in.
कैन वी स्विच टू विद स्क्रॉलिंग प्लीज? स्क्रॉल कर दीजिए, थोड़ा सा करते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म आया था, दैट वाज फॉर्म 10E। इसके 10(1)(IE, सो इसके अंदर बेसिकली वी वर अलाउड टू ऑप्ट इन फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। इसके अंदर हमसे सारी डिटेल्स मांगी गई थी, दैट what are the details, do you have any incomes, what is, can we move a little down? Yes. So whether you are opting for this new scheme, and is the option exercised by you for the first time, and what all, everything, these are the all details. And I believe that this form would be available on the income tax portal online and shall be approved. Now, for the individuals and HUF who are not having income, any other income from business, जिन लोगों की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, आई गेस उन लोगों के लिए ये जो फॉर्म है ये रिटर्न में ही आ जाएगा फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ प्रोसीजर। सो वी कैन स्विच बैक टू द नॉर्मल व्यू। आइशना, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। सो उनके लिए ये वाला ऑप्शन जो है, आई गेस ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, या ये इंटीग्रेटेड फॉर्म के रूप में ही आ जाएगा, बिकॉज रूल में तो स्पेसिफिकली लिखा है दैट इन ऑर्डर टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्म यू हैव टू बेसिकली अप्लाई इन दिस फॉर्म। लेकिन जो ये फॉर्म की हेडिंग है, वो फॉर्म की हेडिंग कहती है दैट दिस इज पर्टेनिंग टू पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। उसके बाद लिखा है सब सेक्शन 5, उसके बाद लिखा है सब क्लॉज 1(I)(1) बेसिकली उसका मतलब है। तो दैट इज फॉर पीपल हु आर हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसका सेकंड कैटेगरी में जो लोग हैं, दे आर पीपल हु आर अदर देन पीपल अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाला जो फॉर्म है ये इंटीग्रेटेड वे में आएगा, दैट इज इंक्लूडेड इन एज अ पार्ट ऑफ देयर रिटर्न। सो जब भी वो अपनी रिटर्न को फाइनलाइज कर रहे होंगे, जब भी वो लोग अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक चेकबॉक्स की तरह इस चीज को टिक कर देंगे, एंड रेस्ट ऑल डिटेल्स जो होंगी वो ऑटो फैच हो जाएंगी, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो बेसिकली एक इंटीग्रेशन होगा मेरे हिसाब से, अलग अलग से देयर वुड बी अ स्पेसिफाइड फॉर्म, बिकॉज अगेन दिस वुड लीड टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, जो कि आई बिलीव द गवर्नमेंट इज नॉट इंटेंडेड टू। बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में तो आई डू बिलीव डेफिनेटली ये फॉर्म हमें अलग से ही फाइल करना पड़ेगा फॉर पीपल, इंडिविजुअल्स एंड HUF हु आर हैविंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट फॉर अदर्स आई डोंट थिंक दिस वुड बी। बाकी ये देखेंगे नेक्स्ट ईयर जब हम लोग ये वाले रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे कि फाइनली क्या चीज निकल के आती है। अभी तो हमारे पास वी हैव दिस फॉर्म नंबर 10(IE), हम लोगों के पास सिर्फ यही है। तो इसका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 82/2020 में पूरा मेथड जो है इसका दिया था, और ये भी दिया था कि ये आपका ये जो ऑप्शन है ये हर साल ऑप्शनल रहेगा आप लोगों के लिए। सो एक साल आपने ये स्कीम का बेनिफिट ले लिया है, अगले साल आप इस अब ओल्ड में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है योर टैक्स लायबिलिटी अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम इज लोअर, तो यू कैन स्विच। लेकिन आप एक साल के लिए एक ही, ऑब्वियसली एक ही स्कीम के अंडर रहेंगे। यू कैन नॉट स्विच बिटवीन द टू लाइक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हाँ, अगले साल फिर आप चाहें इसको वापस से स्विच कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो आपकी विल रहेगी। सो बेसिकली दिस ऑप्शन is open every year in respect of your incomes that you earn. So every year जो भी आपकी income रहेगी उसको compute करने के लिए you can take the benefit of the new tax regime, or you can continue to stay in your old tax regime, and उसके लिए अपने को ये form 10(IE), जो कि मुझे ऐसा लगता है कि will be a part of your return only, so उसके अंदर आपको ये option को exercise करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू करा था, सर्कुलर C1, 13th April 2020 को। सो दिस वाज बेसिकली फॉर पीपल कि जिन लोगों ने अब न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है, उन्हें तो अपने एम्प्लॉयज को दे हैव टू कम्युनिकेट दैट वेदर दे विश टू ऑप्ट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम और दे वांट टू कंटिन्यू अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, बिकॉज TDS का कैलकुलेशन आपका पर मंथ बेसिस पे रहता है, एंड फिर उसका कॉम्प्यूटेशन कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। सो एम्प्लॉयज को डिसाइड करने के लिए दे हैव टू बी गिवन एन ऑप्शन, और वो ऑप्शन एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना था। So इसके लिए the department came in with this circular C1 of 2020. So इसके अंदर they devised a method basically that what they have to communicate to their employer. So उसके लिए this circular mentioned
that the employee who wishes to exercise the option under the new tax regime, so they have to give a declaration to their employer that they want to continue under the they want to get transferred in the new tax regime and do not want to continue in the old tax regime. So उन केसेस के लिए जो उनका एम्प्लॉयर होगा वो आपका न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी डिडक्शंस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कोई भी उसको अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं दैट वेदर यू वांट टू स्टे इन द ओल्ड टैक्स रिजीम और यू वांट टू कम इन द न्यू टैक्स रिजीम, सो बाय डिफॉल्ट द एम्प्लॉयर विल हैव टू फॉलो द ओल्ड टैक्स रिजीम ओनली। वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं लेके आएगा, वो आपकी टीडीएस की डिडक्शंस वगैरह जो भी करेगा वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ही करेगा। तो ये इस सर्कुलर में बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन था। इसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉय चाहता है लाइक पूरे साल अब उसकी इनकम पे टीडीएस कटता रहा, से सपोज न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, एंड साल के एंड में जब वो पहुंचा, सो व्हेन ही वाज कंप्यूटिंग हिज टैक्सेस, so he finds that his tax exposure under the old tax regime is lower and under a new tax regime is higher. However, उस टाइम पे when he was selecting, so उसने अपना computation इतना अच्छे से नहीं किया मे बी, या फिर उसने कुछ डिडक्शन साल में ऐसे लिए जिसका बेनिफिट उसने उस टाइम पे अज्यूम नहीं किया था। तो उन लोगों के लिए क्या न्यू टैक्स रिजीम से निकलने का ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर चुके हैं दैट दे वांट टू स्टे इन दी न्यू टैक्स रिजीम। सो उस टाइम पे क्या वो लोग स्विच कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। आपको अपनी टैक्स रिजीम जो चूज करनी है वो करनी है साल के एंड पे, जब आप लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, अपने टैक्सेस जो भी आपके बैलेंस टैक्सेस हैं उन्हें पे कर रहे होंगे या रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। सो उस टाइम यू विल हैव एन ऑप्शन टू आइदर चूज द ओल्ड टैक्स रिजीम और द न्यू टैक्स regime. This is irrespective of the fact that you have given a disclaimer to your like intimated your employer about the that you want to continue under the new tax regime or old tax regime. So आपके लिए बेसिकली ये ऑप्शन साल के एंड तक ओपन है। जब तक आप अपने रिटर्न फाइल नहीं कर देते आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में रहना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप न्यू चेक ओल्ड टिक करके अपने रिटर्न अपनी इनकम्स और टैक्सेस को कैलकुलेट कर लीजिए, या अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ओल्ड बोल रखा है और अब आप न्यू में आना चाहते हैं तो आप न्यू बोल के उसे कंप्यूट कर लीजिए। देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंस, मतलब आपको कोई नहीं रोक रहा है ये चीज करने से। ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो था ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और वो कहीं एम्प्लॉयड भी हैं, यानी वो सैलरी इनकम भी ड्रॉ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टीडीएस का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। इनफैक्ट उनका कंप्यूटेशन का सिस्टम भी, स्कीम से आने जाने का सिस्टम भी कुछ अलग है। उन लोगों को एक ही बार ऑप्शन मिलता है कि वो इस स्कीम से निकल सकते हैं, इस स्कीम में आ सकते हैं, और एक बार आने के बाद जाने का भी सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकते हैं उस स्कीम में। सो जब मैं ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों की बात करूंगा स्पेसिफिकली, सो उस टाइम पे आई हाईलाइट दिस। ओके, तो हम आ ही जाते हैं पार्ट 2 पे, उन लोगों की, उन इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ की बात करने हु हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन। So basically we are now discussing part 1 में we discussed about individuals and HUF who have income other than business and profession, जो कि सैलरीड हैं या फिर और कोई अदर इनकम्स आती हैं, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम्स है, सीनियर सिटीजन है एक्सेट्रा। तो उन लोगों के लिए तो हम लोग जो पार्ट 1 में डिस्कशन करके हैं दैट इज कंप्लीट। उन लोगों को अब उस हिसाब से अपनी इनकम्स को कंप्यूट करना है एंड उसी हिसाब से अपने टैक्सेस पे करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हु हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं? जो ऊपर मैंने सेक्रीफाइसेस बताए दे आर सेम, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली फ्लो टू इवन दिस पार्ट आल्सो। एडिशनली क्या क्या एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस हैं जो आपको फोरगो करनी पड़ेंगी? सो द फर्स्ट वन इज कमिंग, दैट इज एग्जाम्पशन फॉर एसईजेड। ये आपको सेक्शन 10A में मिला करती थी, तो ये आपको बेसिकली इसे फोरगो करना पड़ेगा। दूसरा था एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये एट द रेट ऑफ 10% 20% मिला करते थे आपको अंडर सेक्शन 32(1)(2)A। तो इसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम के अंदर विड्रॉ कर लिया। एक आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32AD, 33AB, 33ABA, ये तीनों सेक्शंस थे। इसमें साइट रिस्टोरेशन था, टी एंड कॉफी था, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी था, इन सबकी डिडक्शंस मिला करती थी। तो ये भी गवर्नमेंट ने अब न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चूज करते हैं तो ये विड्रॉ कर लिए। बाकी डोनेशंस, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के लिए वेरियस डिडक्शंस थी अंडर सेक्शन 35 जो हाईलाइटेड थी इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी सब गवर्नमेंट ने जो है वो विड्रॉ कर लिए अंडर दी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड।
नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एक्सपेंडिचर और बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस। ये 35 AD में मिला करता था। स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए आपको अप टू 100% एग्जामेशन डिडक्शन मिला करती थी। सो दैट ऑल्सो स्टैंड्स विड्रॉन नाउ। एक्सपेंडिचर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट मिला करती थी 35 CCC में। ये भी बड़ी मेजर डिडक्शन हुआ करती थी, एंड दिस also has been withdrawn if the person chooses to stay in the new tax regime. ओल्ड में अगर वो रहते हैं सो दे कैन ऑलवेज टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम्पशन, बट उस केस में फिर उन्हें रेट का बेनिफिट, जो रिड्यूस रेट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A की बात करी जाए तो ऊपर की 80C 80D जितनी भी मैंने डिडक्शंस डिस्कस करी दे आर सेम, उनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इस स्कीम के अंदर भी। एडिशनली जो विड्रॉ हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 80IA IB IAC IB, ये सब सारे के सारे दे आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस की इनकम से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे सेक्शंस हैं स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस क्लास बिजनेस सेगमेंट्स जो इंडिविजुअल और एचओएस में ऑपरेट कर रहे हैं। और ये होटल्स के लिए भी था, कोई स्पेशल कैटेगरी एंटरप्राइजेस के लिए भी था। ये सब लाइन से पूरे विड्रॉ हो गए हैं। IA IAB IAC IB IBA IC ID एंड IE, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए IE था। तो ये 80IA की पूरी जो सीरीज है ये पूरी की पूरी स्टैंड्स विड्रॉन। कुछ दिया है गवर्नमेंट ने इसके बदले, कुछ कोई डिडक्शन छोड़ दी हो बाय चांस, तो हाँ जी एक डिडक्शन छोड़ दी है 80JJA की। ये हमारी हुआ करती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। सो ये आपको न्यू रिजीम के तहत भी मिलेगी ही मिलेगी। तो जो भी हमने ऊपर पार्ट 1 में डिडक्शंस की बात करी है वो तो सारी विड्रॉन है ही है। इन एडिशनली बिजनेस और प्रोफेशन वालों को ये मिला करती थी एंड ये भी अब विड्रॉ हो गई। सेट ऑफ की अगर बात करें व्हाट ऑल विल बी लाइक यू हैव टू फोरगो अंडर दी सेट ऑफ क्लॉज। तो सेट ऑफ में आपको मान लीजिए आपकी जो डेप्रिसिएशन थी फ्रॉम अर्लियर ईयर, इफ सच डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन जो हमने ऊपर स्टेट करी, तो उसका बेनिफिट आपको अब नहीं मिलेगा। पहले आप लोग अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऑब्वियसली जो बच जाता था उसे आप सेट ऑफ कर सकते थे, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपका लैप्स हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे, बेसिकली सम केसेस वेयर देयर वुड बी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दैट रिमेन्स टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, एंड 32(2)A के अंदर हम लोगों को वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो अब नहीं मिल रहा है। एंड मान लीजिए हमने जो अपने एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस करती है, लेकिन एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उसका इफेक्ट नहीं आया। सो हम उसे राइट बैक कर देंगे उस डेप्रिसिएशन को, आपके एसेट की वैल्यू उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी बिकॉज आपको न्यू रिजीम के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रही है। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिटर्न डाउन वैल्यूज होंगी उसके अंदर एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो भी नेसेसरी चेंजेस प्लस माइनस है वो आपको करने पड़ेंगे। इसका भी सेम मैनर रहेगा ऑप्ट इन करने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये फॉर्म 10IE जो है ये आया ही बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए है। तो जो भी लोग ये वाली न्यू स्कीम के अंदर who all want to come in the new tax regime, so they'll basically require the filing of form 10IE in order to avail the benefits. अब इसके अंदर और पिछले वाले के अंदर छोटा सा डिफरेंस है that such option once exercised shall apply to all the subsequent assessment years. पिछले वाले में I told everybody कि this particular deduction or this particular option under the new tax regime that is optional every year. Every year you have a right to decide that whether you want to continue under the old tax regime or new tax regime, or you want to switch between any. So you can switch on your the most beneficial to you, the option that is most beneficial to you, उसके अंदर आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अंदर ये है कि अगर आपने एक बार इस ऑप्शन का बेनिफिट ले लिया है, अगर आपकी प्रोफेशन एंड बिजनेस से इनकम है, और तो ये आप विड्रॉ कर सकते हैं केवल एक बार। दिस ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर अदर देन द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। ये तो ऑब्वियस रहेगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसमें आ गए तो एक बार आप इससे बाहर जा सकते हैं, बस उसके बाद आप दोबारा से इस ऑप्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से, मान लीजिए 1 साल आपने इस स्कीम का बेनिफिट लिया, अब न्यू रिजीम में आ गए, आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, यू हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स रिजीम। अब नेक्स्ट ईयर में आप चाहते हैं कि आप इस स्कीम से कर जाए हैं विड्रॉ, क्योंकि आपको उसमें एग्जाम्पशन और डिडक्शंस मिल रहे हैं जिससे आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो आ रही है कम। सो यू कैन डेफिनेटली मूव टू दैट ओल्ड स्कीम वंस,
यहाँ तक हमने इस प्रोविजन को कर दिया है सेटिस्फाई। अब मान लीजिए उस साल में नेक्स्ट जिसमें आपने इसको विड्रॉ किया था उससे अगले साल में यू डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आपने वो व्यापार ही छोड़ दिया, या फिर कोई भी केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर अब आप बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं कमा रहे। तो इस केस में क्या आप वापस से इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने न्यू टैक्स रिजीम के? सो द आंसर इज यस, क्योंकि अब आप फॉल कर गए हैं जो हमारी डिस्कशन थी इसके पार्ट 1 में, एंड उसमें वो ऑप्शन आपको हर साल मिलता है जैसे मैंने ऊपर बताया। तो अब आप उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो अब नाउ यू कैन टेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम, बशर्ते आपकी प्रोफेशन और बिजनेस से इनकम नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें वही सारे कंडीशंस वगैरह जो भी इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस रहेंगी कि आप ये डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस नहीं ले सकते हैं, ये रहेंगी, तो ही आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। You have to compute the total income at the end of the year, and then you have to decide that whether you want to opt in the new tax regime or you should continue in the old tax regime. ये आपको हर साल करना पड़ेगा फॉर पीपल दोज हु आर अंडर दी नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेकेंडली उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, आप एक साल इसे कंप्यूट करिए, अगर आपको इसमें बेनिफिट दिख रहा है इस स्कीम के अंदर तो यू कैन स्विच टू योर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा है यार, यू आर क्लेमिंग टू मच ऑफ एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस, सो यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ये स्कीम जहां तक कि मैंने देखा है, इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल हु आर नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स दैट एंटाइटल यू फॉर डिडक्शंस। अगर किसी की 15 लाख रुपए तक की इनकम हुआ करती थी पहले, फॉर एग्जाम्पल अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम, एंड वो कोई भी डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस नहीं क्लेम करते थे, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे कहीं पे पैसे को, या फिर वो एचआरए भी नहीं क्लेम कर रहे थे बिकॉज दे हैव देयर ओन हाउस, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली इट इज अ सिंप्लीफाइड न्यू स्कीम। इसके अंदर आप आ सकते हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, एंड इसके अंदर यू कैन मूव ऑन एंड अपने टैक्सेस को आप सेव कर सकते हैं। सो ये स्कीम टेम्पटिंग जरूर थी जब ये आई थी बजट 2020 में, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट केम अलाइड, सो अगेन देयर वाज कंफ्यूजन। ये शायद और कॉम्प्लेक्स हो गया था सारा मैटर कि भाई अब इस पे रहें या उसमें रहें। तो हर बार की तरह, हर साल की तरह आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यू हैव टू इवैल्यूएट दैट वेदर दिस वन इज बेनिफिशियल और द अदर वन, बिकॉज हो सकता है आप कुछ एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम ही नहीं करते हैं एक साल में, एंड दूसरे साल में यू आर अगेन मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स और पेमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की आपने इंश्योरेंस जो है वो 2021 में ली, लेकिन 1920 में नहीं ली, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप 2020 में इस डिडक्शन को क्लेम करें 80D को, तो आपकी जो लाइबिलिटी है या एक्सपोजर है वो कम हो जाए, बिकॉज 80D के अंदर मैक्सिमम अलाउंस 1 लाख रुपए तक का है, फिर मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी मिलता है 50-50 करके, वो 1 लाख बनता है। तो अगर उस 1 लाख से आपकी इनकम 6 से 5 हो रही है, तो ओल्ड के अंदर तो आपको टैक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दिस वेज आपको हर साल जो है इस चीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिस बेसिस पे मैं ये एक कॉम्प्यूटेशन बना रहा था छोटी सी, तो उसके अंदर मैंने एक एवरेज डिडक्शंस निकाली कि 7.5 लाख रुपए की डिडक्शंस एक बंदा मैक्सिमम क्लेम कर सकता है। उसके अंदर देवर एलटीसी, एचआरए, जिसे मैंने एचआरए को कंप्यूट किया 15,000 पर मंथ पे, एलटीसी को कंप्यूट किया 50,000 पे, हाउसिंग लोन को 2 लाख पे लिया, एटीसी और एटीडी को 1,50,000 लिया, एनपीएस को लिया। तो ऐसे कर करके जो टोटल हमारी डिडक्शंस हैं वो हम एक आदमी एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन 7.5 लाख रुपए तक की क्लेम करता है। नॉर्मल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बात करता हूँ, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, बट मैंने एक ये एवरेज माना। अब इसके अंदर नाउ वी आर स्विचिंग टू 4 सिनेरियोस, जिसके अंदर 15 लाख की उसकी एक असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम है। इसमें से ये जो डिडक्शन है ओल्ड के अंदर अगर हम माइनस करते हैं, तो ओल्ड के अंदर 7.5 लाख, ये सब में 7.5 लाख अगर हम हटाते हैं तो टोटल इनकम 7.5 रह जाती है, जिसपे टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 62,500। ठीक है, और न्यू में बनता है 1,87,500। तो इसके लिए तो, इस पर्टिकुलर एसएससी के लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेटर है, बिकॉज ही इज क्लेमिंग टू मच डिडक्शंस। आप ये डिडक्शंस को रिड्यूस करना शुरू कीजिए, 7.5 लाख से हम मूव करते हैं 2.5 लाख हो जाती है मान लीजिए ये डिडक्शन 15 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम के साथ, तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी 12.5 लाख। 12.5 लाख पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी टैक्स 1,87,500 बनेगा, और ओल्ड के अंदर भी 1,87,500 बनेगा। ये आपका ब्रेक इवन आ गया, इंडिफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे आप ओल्ड सेलेक्ट कीजिए, न्यू सेलेक्ट कीजिए, आपके ऑप्शन।
अब मान लीजिए यही एक पर्टिकुलर एसएससी 1 लाख की सिर्फ डिडक्शंस क्लेम कर रहा है, तो 14 लाख का उसका टोटल इनकम हो गया। उसके ऊपर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में देखें तो 2,32,000 रुपीज का उसकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, न्यू के अंदर इट्स जस्ट 1,87,000। तो बेसिकली इसका क्रक्स क्या है, दैट इफ यू हैव एन इनकम, इफ यू आर क्लेमिंग लेस डिडक्शंस, if you are claiming no deductions or exemptions, so it would be obvious automatically better if you come under the new tax regime. And if you have a lot of deductions or claiming lot of exemptions and deductions, so it is better if you stay in the old tax regime. So the option is on you. You have to everyone should carefully assess their total incomes and deduction and evaluate the tax payable under the old scheme and new regime to gain the maximum benefit and to decide accordingly. So with that, we finally conclude with our webinar. We have discussed all the topics, all the sections and provisions that were included in section 115 BAC. Very soon, we will be covering with our next webinar. Will definitely be taking the series of webinar where a lot of professionals have approached me to take a session on section 115 BAB, that is for companies. So most probably in the next session, we will definitely try to take the particular topic for BAB for the companies, that is the new scheme for the companies. And I thank everyone for joining us for this session. And thank you so much, CA Club India, for inviting me here. So we are open for the questions now. If anybody has any questions, I am there to help you out. Thank you so much, Ujjwal, for this incredible session. And I'm sure we've all had a better understanding of the new income tax regime now. We have some questions from Facebook. I think you've mostly covered everything, but we'll just stress through these questions once. Yeah, sure. The first one is, why can't we claim deduction on interest for a housing loan under the new tax regime? So under the new tax regime, basically, they have clarified that the benefit of 24B, that is for the interest on loan, that is only available if your house is rented. If it is self-occupied or vacant, then that particular deduction that we were claiming under the section house property, that won't be available. So that is within the provisions, that is 115 BSE. उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से. बट अगर आप वो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड स्कीम में, यू आर मोर देन वेलकम, बट न्यू स्कीम के अंदर यू आर नॉट एंटाइटल्ड. हाउएवर इफ यू हैव अ वेकेंट हाउस, दिस रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी, तब आप उसका बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे, बट उतनी ही इनकम तक जितनी आपकी हाउस प्रॉपर्टी से है. पहले तो उसका सेट ऑफ का भी बेनिफिट आपको मिल जाता था, बट नाउ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दैट बेनिफिट ऑल्सो. We have a question from Madhuri Jain. Will Yeah. you please explain again the concept of rental income and interest on loan set off and carried forward? Yeah, definitely, Madhuri. So I guess this particular section, because this is the only provision that has a catch, so everybody is pointing to that provision. I'm more than very happy to discuss it once again. So if you have any income from house property and that income is pertaining obviously to the rentals, so for that particular rental property income, you are more than eligible to claim any interest that you have paid by purchasing that house property. However, that particular deduction is just limited under the new tax regime to the total amount of income that you earn under the section income from house property. अगर आपकी इनकम कम है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है, तो हम लोगों को ओल्ड रिजीम के अंदर इसका सेट ऑफ बेनिफिट मिलता था. न्यू रिजीम के अंदर आपको इसका सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेकेंडली हम बात करते हैं, अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है दैट इज वेकेंट या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट, आपने परचेज किया हाउस एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर न्यू रिजीम मिलेगा ही नहीं. मतलब बेसिकली वो सेट ऑफ का ही बेनिफिट हो गया. सो यू आर नॉट गेटिंग एनी सेट ऑफ बेनिफिट. Under old regime, you are more than eligible to claim that deduction under the old regime, but under the new regime, they have withdrawn this benefit. अब क्या करें, सरकार ने 5, 7 और 10% के लिए सारी exemption और deduction जो हैं they have withdrawn. So this is what is for house property. इसमें set off भी मैंने cover कर दिया, interest on loan भी cover कर दिया. माधुरी, I believe कि अब you are more clear with this topic. So we're already short on time, so we'll take up the last question, which is, what was the need of the new income tax regime? Okay, so this I think you should tweet Nirmala ma'am,
over Twitter and ask her that what was the need. But as far as I understand, that the government didn't have much this time to give it to the taxpayers, and because kuch na kuch dena tha, because there is always a onus on the government to extend few benefits to the taxpayers. So by this, they have just simplified the procedure in way the tax calculation can be done for people who do not claim much deductions and exemptions. तो उन लोगों के लिए 15 लाख तक they have given this benefit of up to 25% of rate. तो उन लोगों के लिए this scheme would be a better crack. However, for the people who are already claiming the maximum possible deductions, जो कि हर इंडियन मेरे हिसाब से कर ही रहा होगा, बिकॉज हम लोग 1 रुपए की डिडक्शन को भी नहीं छोड़ते हैं. इनफैक्ट डिडक्शन क्लेम करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी टू डोनेट अंडर एटीजी ऑल्सो, जबकि आप वहाँ 5,000 का खर्चा कर रहे हैं, बट कि इससे डिडक्शन मिल जाएगी तो मैं टीजी कर देता हूँ. तो उस केसेस में तो ऑब्वियसली द ओल्ड टैक्स रिजीम वुड बी बेटर फॉर यू. तो ये आपको हर साल कंप्यूट करना पड़ेगा फर्स्टली. एंड गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया क्यों, आई रियली डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दिस. बट आई बिलीव कि कुछ लोगों को तो डेफिनेटली फायदा होगा ही, बिकॉज मैंने भी कुछ लोगों का अपना इनकम कॉम्प्यूटेशन किया है फॉर टीडीएस डिडक्शन. मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स अप्रोच मी, सो फ्यू पीपल वर हैविंग दिस बेनिफिट. उनको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्सेस की लायबिलिटी कम बन रही थी अब तक. अब लास्ट में उनकी अगेन उनकी डिडक्शंस वगैरह वो लोग और लेना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो विल डेफिनेटली स्विच बैक टू द ओल्ड रिजीम. So this is my answer for your question. So we have one more question. Yeah, Can yeah. an assessee change the method during the assessment year while TDS is being deducted by employer? Employee has opted for new regime and changed to old regime. Correct. Perfect. I covered this in the discussion. You must have missed it. But yes, you are absolutely correct. The assessee can switch back to the old regime if he has opted for the method of TDS deduction to his employer in under the new regime. So आपको जब अपनी रिटर्न फाइनलाइज करनी है, अपने टैक्सेस फाइनलाइज करने हैं, ओनली देन यू हैव टू select the relevant scheme, and उसी के हिसाब से you have to claim the refund or pay the balance tax. So you always have an option to switch between those schemes. The TDS factor, that the TDS disclosure that you have made to the employer, that would be immaterial. ठीक है, तो उसकी मटेरियलिटी जो निकलेगी वो आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए निकलेगी. Okay, so thank you so much, Ujjwal, again for this webinar, and thank you guys for participating. And stay tuned with CA Club India for more such webinars. Thank you so much, Aishna. And like happy advance May, happy Diwali to all our viewers and also to all the team of CA Club India. It's a festive season that is going on right now, but due to COVID, there are situations that we are not able to move freely. So wishing everyone greetings of the festive delights that are coming ahead. Stay home, stay well, stay safe, and stay connected with CA Club India. If you have any doubts, you can leave your doubts on the Facebook page or on the YouTube video that would be uploaded very soon by the team. So I'll be taking every doubt there. Thank you so much, everyone. Thank you, Aishna. Thank you.